So, welcome to continuous session of the computer-aided or integrated production planning control. As we already discussed in the last lecture, the basic and conventional traditional kind of production planning and their drawbacks. So now we are going to discuss the computer-aided integrated production planning and control. So in this, we are going to continue the discussion. So, as I earlier told that the production planning control not only concerns the problem of scheduling and material management, but it also overlap into the science of inventory control. Okay, the inventory should be maintained accordingly. Further, the operations and operation management would be there. How the operation are going to take place, देन मटेरियल हैंडलिंग कैसे मटेरियल एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे कैसे प्लान करना है उसको भी हम अच्छे से प्लान करेंगे and maintenance should be planned and information systems. So one shop to another shop and in a complete factory, the information flow in the smooth manner, Okay. Now there are two parts. One is the planning part and one is the control part. Planning part have a different things such as planning, routing, scheduling, and loading of each machine. Then in a control part, it would be follow up and expediting and various kind of inspection at the level of processes, then their evaluation, then finally the dispatching of the finished part. In the production planning, we are going to discuss the first one thing, then later on we will going to discuss the control. In the production planning, what task should be planned? This is the first thing. Then where it need to be carried out, कहाँ कहाँ कैसे कैसे किस रूट से जाएगा, किस किस शॉप से गुजरेगा, उन सब की प्लानिंग इन्वॉल्व होनी चाहिए. Then when need to be carried out, ये x एक्स वाई जेड कोई भी प्रोडक्ट है या एक्स प्रोडक्ट में ए बी सी डी नंबर ऑफ प्रोसेसेस है, वो कब कहाँ कैसे प्रोसेस होंगे. So there should be a schedule. Schedule involve the product as well as process. प्रोडक्ट का प्रोसेस, कोई भी प्रोडक्ट होगा उसका प्रोसेस इन्वॉल्व होगा. प्रोसेस के साथ साथ ये कॉलिब्रेशन करेगा किस मशीन से, देन कौन करेगा, मैन. ठीक, तो दिस इज एंड व्हेन, इस प्रोसेस को कब करेगा. कब का मतलब है कि पहला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. फाइन. Then loading, who will perform the task. In this case, we are going to assign the man and machine both. ठीक है. So इस तरीके से प्रोडक्शन की कंप्लीट प्लानिंग होगी इन रूट मैनर. फर्स्ट वी आर गोइंग टू प्लान, देन रूटीन, देन शेड्यूलिंग, देन लोडिंग. ओके. नाउ अब प्लानिंग का डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा डिटेल में. इट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्शन प्लान एंड कंट्रोल. इज इट? It's a first element. Then means deciding in advance what is to be done in the upcoming future. It may be short-term planning, okay, short-term planning, or it may be long-term planning. ठीक है. तो इस तरीके से हम प्लानिंग को प्लान करेंगे. जस्ट इसको हम एक ही सेंटेंस में बोल ले कंप्लीट चीज को, तो हम कहेंगे वी आर गोइंग टू फोरकास्ट द कंप्लीट प्रोडक्शन. An organizer setup is created to prepare plans and policies. कोई ना कोई एक सेटअप होगा. सेटअप का मतलब है a group of engineers, एडमिनिस्ट्रेटर्स और शॉप फ्लोर लेवल के फोरमैन्स के. इस तरीके से इन लोगों की एक ऑर्गेनाइजेशन होगी और वो आपका प्लान एंड पॉलिसीज को सेटअप करेंगे. नाउ वेरियस चार्ट अर्लियर अवेलेबल, वेरियस मैनुअल ऑफ मशीन्स और सिस्टम्स और स्टैंडर्ड्स, है ना, उन सबको देखते हुए फिर बजट और सबको देखते हुए हम प्लान करेंगे.
हम प्लान करेंगे. Then planning provides a sound based knowledge for the control, because planning is the first part, first phase. Phase 1 is the planning, and phase 2 would be control. Okay. First is planning, then going to control. A separate department to set up for this work. That is why it called as a planning section, isn't it? This is planning section. These all things, the planning section should have enough knowledge, okay, enough knowledgeable people. So experienced people, knowledgeable people, experienced people, इन सबका ग्रुप होगा, जो ग्रुप एक सेक्शन क्रिएट करेगा, और उस सेक्शन का काम है इन प्रोसेस सभी चीजों को, इन सभी चीजों को प्लान करना और इन सभी चीजों को केटर करना. केटर का मतलब है कि इन सभी को इन्वॉल्व करना. क्या इन्वॉल्व करेंगे? कि फ्यूचरिस्टिक होगा, के पॉलिसीज डिसाइड करेंगे किसको देख के, अर्लियर वेरियस जो भी अवेलेबल चार्ट्स है, मैनुअल्स है, स्टैंडर्ड्स है, बजट है. के सो इट गोइंग टू फैसिलिटेट द control phase, going to facilitate the all the things for the control phase. Okay, this is what about the planning. Now there are various type of production planning. First of all, aggregated planning, then master, third material requirement, and fourth is the capacity planning. Aggregated planning involves the production output level for major product lines produced by the firm. क्या करता है ये? Involves various product output level कैसे होंगे? Medium, high, low level for the major product lines. जो बड़े बड़े प्रोडक्ट की है उन चीजों का आउटपुट लेवल मेजर करेंगे, करनी चाहिए. This plan must be coordinate among various functions of the firm, including design section, including production section, including marketing section, including sales section. So these are all are going to be a part of a production या product planning. This all are should be part of the this. So कहने का मतलब है कि एक ऐसा सेक्शन, ऐसी एग्रीगेटेड प्लानिंग जो प्लान के अंदर सभी से कोऑर्डिनेट करे, फर्म से कोऑर्डिनेट करे, प्रोडक्ट डिजाइन सेक्शन से कोऑर्डिनेट करे, प्रोडक्शन से कोऑर्डिनेट करे और मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करे. सो बेसिकली दे रिक्वायर्ड दी व्हाट? They required basic inputs at various stages. Different stages planning की P1 stage, P2 stage, P3 stage, P4 stage. इन स्टेज के लिए क्या आपको डेटा की रिक्वायरमेंट है, वो डेटा ये लोग देंगे. Then it is going to be created the production plan. Now the master one. The aggregated production plan must be converted into now MPS, Master Plan System, which is a specific plan of a quantity to be produced of an individual model or product. कोई आइटम होगा उसकी बात करेंगे. Within each production line. प्रोडक्शन लाइन का मतलब है, आपके कहने का मतलब प्रोडक्शन लाइन का मतलब है कि एक वे है, एक रूट है जो स्टार्ट होता है रॉ मटेरियल से, वेरियस स्टेजेस पे जाता है, अलग अलग स्टेजेस पे जाता है, अलग अलग शॉप्स पे जाएगा और उसके बाद में ये डिस्पैच पे आएगा. तो ये एक रूट होता है, ये किसी की भी प्रोडक्शन लाइन हो सकती है. ठीक. सो एग्रीगेटेड प्लानिंग मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू नाउ मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, और मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल विच इज अ स्पेसिफिक प्लान. बड़ा स्पेसिफिक है किसी एक प्रोडक्ट के लिए, जो कि किस प्रोडक्शन लाइन के थ्रू जाएगा उसी को कहेंगे हम मास्टर प्रोडक्शन प्लानिंग. नाउ मटेरियल रिक्वायरमेंट.
Material requirement. It is acronyms of this is the MRP. ना ध्यान रखिएगा कि ये मटेरियल रिक्वायरमेंट है. अदर इज द MRP 2, दैट इज रिसोर्स प्लानिंग, है ना. ये है सिर्फ मटेरियल्स के रिलेटेड. कि मटेरियल प्लानिंग की भी कई टेक्निक्स होती है, जैसे मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया कि देयर शुड बी अ एवरीथिंग एट ए ऑप्टिमम लेवल. एवरीथिंग शुड बी एट ए ऑप्टिमम लेवल. दैट इज व्हाई द इनकी टेक्निक्स जो डिफरेंट है वो ये डिपार्टमेंट स्टडी करता है. अपने अकॉर्डिंग जो टेक्निक बेस्ट फिट होती है उस टेक्निक को अप्लाई करने की कोशिश करता है. एंड देन आउटपुट को फिर मेजर करता है. what is the envisaged output and what is the actual output. So ये डिपार्टमेंट एक्चुअल वर्सेस प्लान्ड, है ना, इनको कंपेयर करेगा. कंपेयर करने के बाद ये अपनी टेक्निक को रीमोडिफाई करेगा या मॉडिफाई करेगा. मॉडिफाइड करेगा, फिर इटरेशन करेगा. देन गोइंग टू बी चेक अगेन दिस सेक्शन, एक्चुअल वर्सेस प्लान सेक्शन, and actual versus plan, then going to modify further if the error percentage in the plan versus actual is less than the 10%, और वॉट एवर जो स्टैंडर्ड इन्होंने फिट किए होंगे उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो इनके मैच खाएगा वो चीजें करेगा. फाइन. नाउ MRP plan technique usually implemented by a computer that translate the master production schedule to end product into the detailed schedule for a raw material and parts used in a those end product. Fine. Material and parts डायरेक्टली रॉ मटेरियल भी हो सकते हैं, डायरेक्टली फिनिश पार्ट भी उसके अंदर एज ए एक्सेसरीज यूज में आ सकते हैं. उन सब की प्लानिंग को इसमें हम प्लान करेंगे. Now, capacity planning. Fourth one is the capacity planning. Is concerned with determining the labor क्या क्या चाहिए, equipment क्या क्या चाहिए. तो इनकी प्लानिंग को ये एड्रेस करेगा कि फला काम के लिए कोई एंड प्रोडक्ट है या कोई ग्राइंडिंग मशीन है. फॉर एग्जांपल हम बना रहे हैं ग्राइंडिंग मशीन, वो भी CNC बेस्ड. अगर इस मशीन को बनाना है तो हमें वेरियस पार्ट्स चाहिए. इस पार्ट्स में एवरीथिंग नॉट गोइंग टू बी मैन्युफैक्चर इन हाउस. सो सेवरल थिंग्स आर गोइंग टू बी परचेज फ्रॉम द मार्केट डायरेक्टली एज ए पार्ट. दैट इज वर्क ऑफ ए मटेरियल रिसोर्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग. फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर कई तरह की मोटर्स चाहिए, गियर्स चाहिए, फाइन, स्पिंडल चाहिए, बेल्ट चाहिए, पुलीज चाहिए. ओके. तो these things नट बोल्ट्स है, वॉशर है, कई सारी चीजें चाहिए that are fall under the category of parts. ओके. रॉ मटेरियल जिसपे कंपनी फैक्ट्री के अंदर काम होगा उनको रॉ मटेरियल कहेंगे, उनको फिनिश गुड्स में करेंगे कन्वर्ट, एंड देन वी आर गोइंग टू असेंबल द मशीन. फॉर एग्जाम्पल स्क्रैप इज द रॉ मटेरियल जिससे हम कास्टिंग करेंगे. कास्टिंग के बाद में हम मशीन के ऊपर असेंबली सेट करेंगे. दैट इज द फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ रॉ मटेरियल. फिर उसके बाद में स्पेसिफिक कोई लीड स्क्रू बनाना है तो लीड स्क्रू के लिए रॉ रॉड आएगी एक्स डायमीटर की कोई. उस रॉ रॉड को हम फिनिश में कन्वर्ट करेंगे, थ्रेड्स क्रिएट करेंगे एज पर दी अवेलेबल डिजाइन. तो वो अब रॉ मटेरियल कन्वर्टेड इनटू द फिनिश पार्ट एंड देन इट इज गोइंग टू बी यूज इन द मशीन. फिर इस मशीन के लिए हमें किस तरह की लेबर चाहिए, कहीं से हायर करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, या किसी तरह का स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए, जिग है, फिक्सर है, उन सबको हम यहाँ प्लान करेंगे. फाइन. देन आफ्टर द प्लानिंग सेक्शन द सेकेंड थिंग इज द रूटीन. ओके. रूटीन इज टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पाथ which will be followed in the production. Okay? तो जो एग्जैक्ट पाथ होगा उस पाथ को हम फॉलो करेंगे. यहां से शुरू हुआ रॉ मटेरियल, और मे बी रॉ मटेरियल कहीं भी आ सकता है. वैसे तो जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां रॉ मटेरियल आएगा, कहीं पे फिनिश पार्ट्स भी आएंगे. ओके. देन इट इज गोइंग टू बी शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 3, so and so on and so forth. ओके.
इसके अंदर क्वालिटी भी सेक्शन आएगा, इसके अंदर प्रोडक्शन सेक्शन भी आएगा, तो एवरीथिंग वुड बी देयर, इंस्पेक्शन सेक्शन भी आएगा, और हो सके कि यहाँ से कहीं पे वापस टर्न भी हो जाए रिजेक्टेड पीस से। ओके, रिजेक्टेड जो पीस होंगे उनको वापस हमें हो सकता है कि जो वर्केबल है, जो कन्वर्टेबल है, वापस उनको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, देन फर्दर इट विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू दी फिनिश गुड्स, यानी कि डिस्पैच या पैकिंग में, पैकिंग सेक्शन। ठीक है, सो इसका मतलब हुआ ये कंप्लीट एक रूट रूट डिटरमाइन करेगा और उसका एक एग्जैक्ट पाथ होगा, एग्जैक्ट पाथ होगा। नाउ इट इज द सिलेक्शन ऑफ द पाथ। इस पाथ में भी आपने शायद अभी तक नहीं पढ़ा है, अदरवाइज यू आर गोइंग टू बी लर्न द सीपीएम टेक्निक्स, है ना, कुछ है क्रिटिकल पाथ मेथड वगैरह टेक्निक्स है कि कब कौन सी एक्टिविटीज है, एक्टिविटी नंबर ऑफ एक्टिविटीज होती है और आपको कौन सा पाथ फॉलो करना है बेस्ट टू गेट द कंप्लीट द थिंग। सो इट विल रिड्यूस द फ्लो प्रोसेस टाइम, बेसिकली ये टाइम से कंसर्न करता है। So each activity going to be scheduled as per the norms, and you need to identify the best suitable path by the functional objective is the time. Functional objective is the time. So the selection of the path इसमें piece techniques use करते हैं where each unit has to be passed before the reaching the final stage. सारी कंफर्म करनी है कि कोई प्रोसेस ना छूटे और आपका टाइम भी मिनिमम लगे। So ईच एक्टिविटी में कितना टाइम लगता है, एक्स वाई, एक्स वन वाई वन, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एंड सो ऑन, इस तरीके से टाइम है। तो आप यहाँ पे टेक्निक यूज करते हैं। टेक्निक में आपने देखा कि एक्स वन प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर विल गिव मी द मिनिमम टाइम, and x2 plus x4 plus x3 would give me the corresponding just lower than that। तो इस केस में हम ऑप्टिमाइज करके निकालेंगे कि हमारा कोई प्रोसेस ना छूटे एंड वी आर गोइंग टू हैव अ मिनिमम टाइम ऑफ द ईच फॉर द पाथ। सो वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल पाथ एज वेल। The stages for which the goods are to be passed are decided in this process। वेरियस स्टेजेस जो होगी, जो मास्टर रूटीन में होगी, वहीं पे सारी चीज डिफाइन होगी। एंड कंसर्न पर्सन वुड आल्सो बी असाइंड, कंसर्न पर्सन वुड आल्सो बी असाइंड द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू गेट द रेस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ routine is the specification of the flow sequence of operations and processes to be followed। Okay, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ so you guys have a better clarity। सबको दिख रही है ये? यस सर। हाँ, तो क्या मतलब निकला इसका कि रूटीन इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ अ फ्लो सीक्वेंस ऑफ ए ऑपरेशंस। ऑपरेशंस की एक तरह का फ्लो सीक्वेंस है, विथ ऑपरेशन एंड प्रोसेसेस का फ्लो सीक्वेंस है, जिसको हमें फॉलो करना है इन अ प्रोड्यूसिंग ए पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग लॉट। दिस इज डेफिनेशन इज गिवन बाय एल्फोर्ड एंड बेटी। ओके, क्या मतलब हुआ कि रूटीन इज अ स्पेसिफिकेशन ऑफ द फ्लो सीक्वेंस ऑफ ए ऑपरेशन एंड प्रोसेसेस। इन सब का एक तरह से फ्लो सीक्वेंस है। किसका है? ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस। प्रोसेसेस का फ्लो सीक्वेंस है, बस इतना सा याद रखिए, फ्लो सीक्वेंस। फ्लो सीक्वेंस का मीनिंग होता है वन बाय वन इन अ पर्टिकुलर मैनर, दैट इज सीक्वेंस वुड बी स्ट्रेट, वुड बी नॉन स्ट्रेट, वुड बी zigzag मैनर। ओके, सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, बट इट शुड बी इन अ प्री डिफाइंड मैनर। यानी कि पहले से हमने कहा हुआ है कि चाहे आपकी मशीन्स या आपकी शॉप्स में मशीन नंबर 1 यहाँ, 2 यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ, 6 यहाँ शॉप सही है,
हो सकता है सीक्वेंस आपकी इस तरीके से लिखी हुई हो, दैट इज ओके, दैट इज ओके, क्योंकि आप किसी एक मैन्युफैक्चरिंग लॉट के लिए अपनी इन चीजों को रिप्लेस नहीं करोगे, आप यहां से यहां शिफ्टिंग करने की कोशिश करोगे, दैट इज नॉट पॉसिबल, इट कॉस्ट अस वेरी लार्ज, सिग्निफिकेंट अमाउंट वुड बी इन्वेस्टेड अगर आप मशीन्स को शॉप को शिफ्ट करते हो। सो दैट इज नॉट मैटर, मैटर इज व्हाट यू नीड टू फॉलो द सीक्वेंस, द फ्लो सीक्वेंस फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये है रूटीन पूरा। अब रूटीन के डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस है, उसकी बात करें तो डिसाइडिंग व्हाट पार्ट टू बी मेड और परचेज, ठीक है, ये इसके पार्ट्स होंगे। डिटरमाइन द मटेरियल रिक्वायरमेंट, डिटरमाइन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस एंड सीक्वेंसेस, डिटरमाइनिंग द लॉट साइज। लॉट साइज का मतलब है कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है, एक्स1 प्रोडक्ट है, उस एक्स1 प्रोडक्ट का कितना अमाउंट बनाओगे, दिस इज बेसिकली अमाउंट। अमाउंट पर डे, अगर डे में करते हो तो पर डे, और इट मे बी पर वीक, इट मे बी पर मंथ, इट मे बी क्वार्टर, ठीक है, या ईयरली, पर एनम। सो इस तरीके से आप लॉट की साइज भी इसके अंदर डिपेंड करेगी कि बेसिकली एक्स1 प्रोडक्ट है और साथ में एक्स2 प्रोडक्ट भी चल रहा है या एक्स3 प्रोडक्ट भी चल रहा है, तो एवरीथिंग शुड बी इन लाइन, एवरीथिंग शुड बी इन लाइन। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ये मैं इस तरीके से मशीन का चार्ट बनाता हूं, ओके, दिस इज माय मशीन नंबर 1, दिस इज माय मशीन नंबर 2, दिस इज माय मशीन नंबर 3। ये मशीन नंबर 1 है, मशीन नंबर 2 है, ये 1 है, ये 2 है, एंड दिस इज माय 3। अब एज्यूम करिए इस 3 का मैंने हर 3 घंटे का मैंने ग्राफ बना रखा है, ओके, 24 आवर्स है, हर 3 घंटे का ग्राफ बना रखा है। इसमें मुझे ये पता चलता है कि मशीन नंबर 1 यहां बिजी है, इसमें प्रोडक्ट ए चल रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट ए चल रहा है। फिर मशीन नंबर 2 पे प्रोडक्ट ए अब आएगा, और मशीन नंबर 3 पे प्रोडक्ट ए अब आएगा, फाइन। सो दिस इज व्हाट इज द प्रोडक्ट ए। 6-6 घंटे लग रहे हैं इन मशीन्स पे। अब मेरे पास ये मशीन्स बाकी टाइम खाली है, एट दैट टाइम आई एम गोइंग टू लोड द मशीन विथ अनदर काइंड ऑफ प्रोडक्ट बी, फॉर एग्जाम्पल, ओके। और अगर सीक्वेंसिंग में ये पहले बैठ रही है तो गो फॉर प्रोडक्ट बी, और अगर सीक्वेंसिंग में पहले ये बैठ रही है तो गो फॉर प्रोडक्ट बी हियर, ओके। लाइक दैट आई एम गोइंग टू लोड द मशीन, each and every machine for a maximum time। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास में यहां आया कि मेरे पास ये मशीन सुबह खाली है, सो आई एम गोइंग टू लोड द मशीन प्रोडक्ट सी इन दिस। देन अगर इसमें 3 घंटे की जरूरत है ओनली, तो 3 घंटे के लिए लोड करूंगा, या 4.5 घंटे की जरूरत है, 4.5 घंटे लोड करूंगा, ओके। सो बेस्ट ऑप्टिमम चीज मैं यहां करने की कोशिश करूंगा। देन आई वुड फॉलो दिस थिंग कि मशीन, इसके बाद में प्रोडक्ट यहां आ जाएगा, और फिर अगर जरूरत पड़ी तो ये प्रोडक्ट यहां चला जाएगा। सो सी कि इसके अंदर सारे मशीनें ऑप्टिमम मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज हो रही है, मैक्सिमम टाइम यूटिलाइज हो रही है। सो इस तरीके से मुझे हर मशीन को लोड करना है, प्रोडक्ट का प्रोसेस सीक्वेंस फ्लो करना है। सो आई विल गेट दी मैक्सिमम आउटपुट and maximum utilization of each and every resource, okay। so इस तरीके से हम सारे काम करते हैं। डिटरमाइनिंग स्क्रैप फैक्टर जितना हो सके मिनिमाइज करेंगे, एंड एनालिसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम इस तरीके से करेंगे कि फॉर एग्जांपल एक मशीन मेरी बिजी रहने का टाइम, एक मशीन मेरी प्रोडक्शन इतना करती है, इतना प्रोड्यूस कर सकती है, सो इसकी कॉस्ट, जैसे आपको पता है, फॉर एग्जांपल बहुत छोटा एग्जांपल है जेसीबी की, जेसीबी विल कॉस्ट अस अराउंड दी फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज पर आवर, ओके। उसी तरह से मशीन की भी कॉस्ट होगी कि 1000 रुपीज है या 1200 रुपीज है, कितना भी है, उसकी कॉस्ट के अकॉर्डिंग हम मल्टीप्लाई करेंगे कि ये प्रोडक्ट इस मशीन पे इतनी देर पर आवर है कि 0.5 आवर के लिए रुका,
लोडिंग टू अनलोडिंग के टाइम तक पूरी। सो उस उसके अकॉर्डिंग मशीन वन, मशीन टू, मशीन थ्री, इस तरीके से हम क्या निकालेंगे, इसकी कॉस्ट निकालेंगे। दैट इज मशीन कॉस्ट, देन लेबर कॉस्ट वुड बी देयर, okay, then transportation cost from one shop to another shop, and all the overhead would be there. सो इस तरीके से हम देखेंगे कि कहाँ हम लैग कर रहे हैं, कहाँ हम इंप्रूव कर सकते हैं। तो दीज आर दी डेटा, दीज आर दी इंफॉर्मेशन डेटा फ्रॉम विच द एनालिसिस एनालिसिस वुड बी पॉसिबल, है ना। बहुत सारी जगह है, बहुत सारी जगह है, ये तो बस ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ। देन प्रिपरेशन ऑफ द प्रोडक्शन कंट्रोल फॉर्म्स, वेरियस फॉर्म्स वुड बी देयर, जिनको हम प्रिपेयर करेंगे, प्रिपेयर करके कमेटी के सामने रखेंगे, और उसके बाद में कमेटी विल गोइंग टू एनालाइज द थिंग, या अपर एडमिनिस्ट्रेशन गोइंग टू एनालाइज द थिंग। ठीक, तो इस तरीके से रूटीन प्रोसेस काम करता है। अब आते हैं, हमने प्लानिंग देखा, प्लानिंग के बाद में रूटीन देखा, रूटीन के बाद हम शेड्यूलिंग देखते हैं। तो शेड्यूलिंग इज डिटरमाइन दी, जैसा मैंने पहले भी कहा, इट वुड गोइंग टू डिटरमाइन दी टाइम एंड डेट, कब कितनी देर के लिए ये मशीन या ये मैन को हमें ये टास्क देना है। ठीक है, मशीन एंड मैन, टास्क देना है। So when each operation is to be टाइम कि कब लोड होगा और कब अनलोड होगा। सो यू विल हैव अ टाइम इन बिटवीन, टाइम टू लोड and time to unload. So subtraction of this will give you the actual time taken by the particular X number of operations on the Y machine by the Z man. Okay. So the time and date of the manufacturing of each component is fixed. Okay, is fixed in a such a way that assembling for the final product is to be not delayed. Basically ये सारे काम हम क्यों कर रहे हैं? Everything, why we are scheduling, planning, why we are going to follow the routine, है ना। तो ये सारे काम बेसिकली हमारा टारगेट क्या है? We are going to reduce the lead time, reduce the lead time, and further second inherent जो हमारा मोटिव है, that is the cost reduction. Cost reduction for the product by the maximum utilization of man, machine, and every resource maximum utilization. So at all revenue can be enhanced. Clear है? Okay. The determination of the time that should be required to perform each operation, and also the time necessary to perform the entire series as a routed, making allowances for all factor concerned. This is given by the Kimball. Okay, so the क्या कहता है ये कि the determination of the time that should be required to perform each operation, and also time necessary to perform entire series as a routed, making allowances for all factor concerned. सभी चीजों को इन allowances को consider, सारे factors की consider करके, loading, unloading, fatigueness को consider करके, और इलेक्ट्रिसिटी के कट ऑफ को भी कंसीडर करके, शॉर्टफॉल को कंसीडर करके, जो कंप्लीट टाइम को डिटरमाइन करे, दैट इज नोन एज द शेड्यूलिंग, दैट इज नोन एज शेड्यूलिंग। ओके, now there is a type, there is further the type of the scheduling is available, that is master schedule, then manufacturing schedule, then detail operation schedule. Master schedule is top of this two, and manufacturing schedule is again the top of this. So these three are the in a layer format. It is the breakup of production requirement,
सारी प्रोडक्शन को हम इसमें दिखाएंगे बड़े बड़े रूप से. इट इज द स्टार्ट ऑफ शेड्यूलिंग एंड इट इज द प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग इन व्यू द ऑर्डर ऑफ लाइकली सेल ऑर्डर इन अ न्यूअर फ्यूचर, है ना. टारगेट करेंगे कि कितना हमारा हमें ऑर्डर वापस देना है कस्टमर को, उसके हिसाब से हम प्लान करेंगे. फर्दर ये जो जैसे ही तोड़ेगा, प्रोडक्शन ब्रेकअप करेगा प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को, उस रिक्वायरमेंट को मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल मैन्युफैक्चर करेगा और उसी को शेड्यूल करेगा. सो प्रोडक्शन प्रोसेस को शेड्यूल करेगा. द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस ऑफ फॉर द मैन्युफैक्चर इज आल्सो मेंशन्ड इन द शेड्यूल. ओके, द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर द मैन्युफैक्चर is also mentioned in the schedule for a systematic production planning. तो जितने भी इसके प्रेफरेंसेस है कि कौन सा कब मैन्युफैक्चर करना है वो मेंशन होगी, so that we are going to meet out the sales order. The detailed operation schedule is indicate the time required to perform each and every detailed operation of a given process. So इसके अंदर ये लिखा होगा कि टर्निंग, ड्रिलिंग वगैरह में कितना टाइम लगना है अप्रोक्सीमेटली, और उसके अकॉर्डिंग ये ऑपरेशन कब तक कंप्लीट हो जाएगा. तो दिस इज शेड्यूल. सो इट वुड गोइंग टू हैव अ टाइम. बेसिकली ये टाइम का खेल है कि टाइम को हम शेड्यूल कर रहे हैं. नाउ आफ्टर द डिस्कशन अबाउट द प्लानिंग, रूटिंग, शेड्यूलिंग, द नेक्स्ट इज द section is the loading. The loading concern with the execution of the schedule plan as per the route chart, है ना. It include the assignment of the work of the operation at their machines or workplaces, है ना. जितने भी operations होंगे work process में, वो उन सबको operations को ये plan करेगा. Then so loading determine who will do the work, basically who will do the work. So it involve work to the operators at their machines or workplaces. Okay, इसका मतलब हो गया ये किसको टारगेट करेगा, बेसिकली मशीन्स को करेगा और मैन को करेगा. इनको टारगेट करेगा बेसिकली कि इनकी लोडिंग कैपेसिटी कितनी है, कि कौन सी मशीन, जैसे मैंने आप पिछली स्लाइड में दिखाया कि अगर पर वीक लोडिंग है तो वैसे ही वैसे मैन की भी लोडिंग होगी. इन बेसिकली मैन मशीन के साथ अटैच है तो दोनों ही लोड हो गए. एनी डाउट अंटिल नाउ इन अ प्रोडक्शन प्लानिंग? 4 सेक्शन हमने डिस्कस किए. कौन से 4 सेक्शन? प्लानिंग, रूटिंग, शेड्यूलिंग एंड लोडिंग. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रोडक्शन कंट्रोल. There are several parts of the production control. They are listed here. The control of planning, first of all. Then control of tooling. Control of material. It may be raw or it may be finished part, but they should be ordered from the outside. Control of various activities. Control of how to handle the material and which manner. Control of information flow across the enterprises, across the factory, across the shops. Control of quality and quantity both. Then it should have a control over the due date to for the sales order that already committed. Then control of manufacturing capacity, how the things are going to be capacity is loaded or unloaded, and we are utilizing the things or not in an appropriate manner. ठीक है, तो क्या बात कही हमने, ये कंट्रोल जो है वो प्लानिंग को कंट्रोल करेगा. टूलिंग, मटेरियल, एक्टिविटीज, मटेरियल हैंडलिंग, इंफॉर्मेशंस, क्वालिटी, क्वांटिटी, ड्यू डेट्स एंड कैपेसिटी. दिस ऑल आर अगेन गोइंग टू रिवाइज द थिंग्स. देख रहे हो आप, पहले किसी ने प्लान किया और कंट्रोल सेक्शन उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है. सो बोथ आर गोइंग टू चेक देमसेल्फ. प्लानिंग वाले को चेक करेगा कंट्रोल, और अगेन कंट्रोल में कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लानिंग सेक्शन चेक करेगा. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी गिव द फीडबैक टू द प्रोडक्शन प्लानिंग सिस्टम. उसको सेक्शन को कहेगा कि तुम्हारा यहाँ कुछ ल्यूपहोल्स हैं,
प्लीज चेक दैट कि कहाँ आपने गड़बड़ की है, क्योंकि हमारे से हमसे कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल चीजें हो रही है. सो दैट थिंग्स गोइंग टू बी अगेन रीचेक, और नेक्स्ट टाइम में ये प्रॉब्लम्स रेज नहीं होगी. सो दिस इज द सेल्फ चेकिंग सिस्टम ऑल्सो. In the production control system, the dispatch is the first thing. We are going to discuss this one now. In a dispatch is referred to the product actually order to the work to be done. Hmm? Just a minute. I'm going to check colors. Yeah. Dispatching refer to the process of actual ordering the work to be done. Okay. It involves putting the plan into effect by order order to order to each section. It is concerned with starting the process and operation on the basis of route sheet and the schedule chart. इसी डिस्पैचिंग का मतलब है कि आपने अपने शॉप से, यानी कि कंट्रोल सेक्शन ने, वेरियस शॉप नंबर 1, शॉप नंबर 2, शॉप नंबर 3, शॉप नंबर 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ हैव डिस्पैच द वर्क टू बी डन, कि आपको काम क्या करना है. वर्क टू बी डन वुड गोइंग टू बी डिस्पैच. वर्क टू बी डन वुड गोइंग टू बी डिस्पैच. सो ये इसको बेसिकली इनको सबको ऑर्डर देता है कि आपको कौन सा काम कब करना है, एज पर दी रूट शीट एंड शेड्यूल चार्ट. ओके. So dispatching put production in effect by releasing and guiding manufacturing orders in the sequence of previous determined by the route sheet and schedules. This statement is uh, given by John A. Subin. Okay, this statement is given by John A. Subin. Now, after dispatching के प्रोसेस है, अलग अलग प्रोसीजर है. एक है सेंट्रलाइज और एक है डिसेंट्रलाइज. सेंट्रलाइज में ऑर्डर आर डायरेक्टली इश्यू टू वर्कमैन एंड मशीन. यहां से सीधा जॉब ऑर्डर बन के जाएगा, और या तो वो डायरेक्टली वर्कमैन को जाएगा या मशीन को जाएगा. इट हेल्प्स इन एक्सरसाइजिंग इफेक्टिव कंट्रोल डायरेक्टली. डिसेंट्रलाइजिंग, ऑल वर्क ऑर्डर आर इश्यू टू अ decentralized one, foreman or dispatch clerk of the department or section. और वहां से, यानी कि एक सेक्शन है, 2 सेक्शन है, ये लाइन से सेक्शंस है सारे. एक होता है कि डिस्पैच सेक्शन सीधा यहाँ पे सेक्शन में कोई मशीन है, मशीन को डायरेक्ट ऑर्डर देगा, तो दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइज्ड डिस्पैचिंग. एक होगा कि यहाँ पे कोई फोरमैन है जो इन सबको कंट्रोल कर रहा है, उसको ऑर्डर देगा डायरेक्टली, और वो फर्दर इनको ऑर्डर्स को प्रोसेस करने के लिए सब ऑर्डर देगा, इनको सब ऑर्डर देगा. सो एवरी डिपार्टमेंट हैव अ ओन क्लर्क, और कह दो कि है इवन फोरमैन. सो वो उसको अगर आप ऑर्डर देते हो डायरेक्टली, सो इट इज कॉल्ड एज ए डिसेंट्रलाइज्ड वन. It suffer from difficulty in achieving coordinating among the different department. ये इसकी प्रॉब्लम है. Now, next thing after the dispatching is the follow-up and expediting. So in this thing, the progress may be assessed thoroughly, time to time, with the help of routine reports और कम्युनिकेशन विद द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट. कि जैसे ही डिस्पैचिंग सेक्शन में जैसे ही काम हो रहा है, उस काम को उन्होंने कब कितनी देर में किया, उसका वो जिक्र करते हैं अपने इंटरनल कंप्यूटर सिस्टम में, कि यहाँ से ऑर्डर रिसीव हुआ और हमने इस तारीख को, इस दिनांक को या इस टाइम को हमने इसको यहाँ से प्रोसेस करके निकाल दिया, नेक्स्ट डिपार्टमेंट भेज दिया. सो द टाइम टेकन बाय this process would going to again the assessed. ठीक है. So this is based on the routine report and communications.
द फॉलो प्रोसीजर इज यूज्ड फॉर एक्सपेडाइटिंग, कि यहाँ पे इस जगह पे अगर कोई दिक्कत है तो उस दिक्कत को कैसे सॉल्व करेंगे, और कैसे हमारे इस प्रोसेस में अगर टाइम ए लगा तो ए माइनस एक्स करने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, दैट शुड बी क्या स्टेप्स फॉलो और क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ेगा, दैट शुड बी पार्ट ऑफ द दिस follow up and expedite section. So again, this is going to be checked the progress, and if there is improvement, then fine. Otherwise, we need to again recheck the things and expedite the process by changing the follow-up process. है ना? So follow-up or expediting is that ब्रांच ऑफ द प्रोडक्शन कंट्रोल। देखो, ये एक ब्रांच है प्रोडक्शन कंट्रोल प्रोसीजर की, विच रेगुलेट द प्रोग्रेस ऑफ अ मटेरियल एंड पार्ट्स थ्रू द प्रोडक्शन प्रोसेस। इन सब की एक तरह से ब्रांच है, और ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है बिकॉज यू आर गोइंग टू एनालाइज द थिंग योर सेल्फ। क्या आप अपने ही प्रोसेस को, अपने ही रूटीन शीट को, जो आपने रूट शीट बनाई थी, जो आपने मास्टर प्लान बनाया था, उसी को अगेन रीचेक कर रहे हो कि इस वक्त जो आपने रखा था टाइम, वो टाइम को आप रीचेक करके न्यू मेथड इनपुट करके उस टाइम को आप रिड्यूस करके टाइम लगा रहे हो। नाउ इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ensuring inspection is the process of ensuring whether the product manufactured are of requisite quality or not, है ना? जैसा ही जो प्रोडक्ट हमने उसको कमिट किया था, डिजाइन का, जिस डिजाइन का हमने उसको प्रोडक्ट कमिट किया था, उस डिजाइन का हम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, उस चीज की हम यहाँ पे इंस्पेक्शन में चेकिंग करेंगे। So if there is any problem, there is requirement of the some modification from reprocess, then it is again going to be that concern section. So both input and product की दोनों की inspection होगा. It is carried on at various level of production process so that predetermined standard of quality can be or to be achieved. Inspection ensure the maintenance of the predetermined quality of the product. Okay? So inspection is the must, is the part of the control. Now evaluation. Evaluation is the second name is the corrective measures. So evaluation is adjust the route, whatever route has been defined, that is going to be again the evaluate, and now the revising of route sheet. First of all, route sheet would be going to define revise, then whatever section planning afterward would also going to be revised. Everything going to be revised. Everything going to be revised. Then rescheduling again, changing of the workload, repair and maintenance of the machine or equipment also be going to be evaluate. Control over the inventory going to be again evaluate. Certain personal decision like a training if required, transfer if required, demotions if required, then it should be carried out. Okay? क्योंकि अगर एक्स मशीन काम ढंग से नहीं कर रही है, इसमें बार बार फेलियर हो रहे हैं, तो थिंग्स शुड बी या डिसीजन मे बी टेकन एज पर दी पॉलिसी। अगर कोई वाई आदमी ठीक से काम नहीं कर रहा, वो इसमें कंफर्टेबल नहीं है, देन he or she must have to be trained. Alternate method may be suggested to handle the peak load. अगर कुछ है तो उस तरह से हम सजेस्ट भी करेंगे इस सेक्शन के अंदर। The limitation of PPC, production planning control, basically it's based on the assumptions or experience of the planner. Okay, its rigidity is very much challenged. So जैसा कि इंस्पेक्शन में हमने देखा, चाहे हम इवेल्यूशन में देखते हैं कि हमें रूट शीट को चेंज करने की जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज थिंग्स जो प्रैक्टिकली होती है, उस प्रैक्टिकली थिंग्स को इन्वॉल्व करना थियोरेटिकली काफी मुश्किल होता है। आफ्टर द प्रैक्टिकल, द रूट शीट, once the root sheet is revised, then it is less necessary to
less necessary to revise them in the next time. The difficult for a small firm, costly affairs depends on the external factor. Teamwork is the must. Demand of a high level of coordination and efficiency is required. These are the limitations. The significance of a PPC, the structure and plan process. अगर आप इंस्टॉल करते हो तो ये बहुत ही अच्छा है कि स्ट्रक्चर एंड प्लान प्रोसेस है. प्रोडक्शन को इंक्रीज करेगा. प्लान की एवरी प्लांट की एक्टिविटी को सीमलेस रखेगा. देयर इज नो लूपहोल विल बी अवेलेबल. बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन होगा, कॉस्ट का कंट्रोल भी होगा, एंड रेशनलाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज वुड बी देयर. Every productivity going to be rationalized according to the resource. So this is the two figure are available, traditional versus computer aided. There is some modification into computer aided. In the computer aided master schedule, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा कि ये दोनों सभी लोग आपस में इंटरलिंक रहेंगे. Earlier in such case they are not interlinked. यहाँ पे वन वे चल रहा था, जहां पे हम कन्वेंशनल की बात कर रहे थे यहाँ वन वे चल रहा था. बट एज यू नो कि एज द कंप्यूटर एडेड प्रोसेस प्लान है, तो उस वक्त सभी लोगों के पास में कंप्लीट इंफॉर्मेशन रहेगी. दैट इज वाई दिस थिंग master schedule again going to be have a coordination with a capacity control. Then engineering and manufacturing database should have also the material requirement. इनकी एक्सेस होगी, ये आपस में एक दूसरे को एक्सेस करेंगे. शॉप फ्लोर भी कैपेसिटी को यहाँ से एक्सेस करेगा. ये किसका माइक ऑन है, प्लीज चेक इट. शॉप फ्लोर एंड इन्वेंटरी मैनेजमेंट अगेन एक दूसरे को एक्सेस करेगा. सो इट मींस दैट द ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट आर इंटरलिंक्ड विद द इंफॉर्मेशन सिस्टम. जो हमने टेक्नोलॉजी जो फ्लो कर रखी है उस कंप्यूटर एडेड की वजह से हर शॉप के ऊपर कंप्यूटर थिंग्स है, ईआरपी सॉफ्टवेयर्स है. सो डेटा अवेलेबल है, और डेटा अवेलेबल की वजह से हमारे पास में बहुत सारी एक्सेसिबिलिटी रहती है कि हम एक दूसरे को एनालाइज करें. सो इन समरी, traditional PPCR and problem associated with it we have studied. Then to solve the logistic problem to ensure the economic and maximum utilization of resource to achieve the desired manufacturing result in terms of quality, quantity and time and place, we have seen. Now the production planning has basically the 4 section. We discuss the planning, scheduling, routine and loading. Then in a control section, we discuss the dispatch, follow-up and expediting, inspection, evaluation, or corrective measure we have studied. So till this, I think I hope कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होगी जो मैंने ट्राई की है आपको समझाने की. If any question, please ask.